ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਬਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਕ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 MDs ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ MD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MD ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1-2 ਸਟੇਜਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? मैं पहले बताऊं, मैं प्रैक्टिस करता हूं न्यूक्लियर मेडिसिन। और न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब इट इज़ लाइक रेडियोलॉजी, जहां पर अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर से लेके लेट स्टेज ऑफ कैंसर तक हम डायग्नोसिस करते हैं। आपने सुना होगा न्यूक्लियर स्कैन्स, होल बॉडी बोन स्कैन्स, पेट CT स्कैन्स, ये सारा कुछ हम करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इतने सालों में ये देखा जा रहा है, हमारा टोटल काम पहले 20% कैंसर का था, बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई है कि हमारा 50 से 60% काम कैंसर का हो गया है। अब इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि सॉइल को ब्लेम कर लें, इसको ब्लेम कर लें, ये ब्लेम करने वाली बात है। ये सब चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं ओवरनाइट। तो ओवरनाइट क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम कैंसर प्रूफ हो जाए? हमारे ख्याल से आप यही पूछना चाह रहे थे कि इन सब के होते हुए भी क्या हमारे पास कोई उपाय है कि हम सिर्फ ये रोते रहें कि अब पेस्टिसाइड आ गया, हर्बिसाइड आ गया, अब क्या करें, और ये रोते रहें? क्योंकि इसका कोई उपाय ओवरनाइट तो नहीं मिलेगा, लंबे टाइम तक तब जाके ये होगा। तो हमें पहले समझना ज़रूरी है कि कैंसर कैसे है। और चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ
इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी फॉलो अप के पेशेंट्स हैं, फॉलो अप के पेशेंट्स भी हमारे पास ही आते हैं, हमारे नज़रों से ही गुजरते हैं कि इनका सर्जरी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, उसके बाद क्या स्थिति है, टाइम के साथ क्या स्थिति है, ये हम ही टेस्ट करते हैं, हम ही रिपोर्ट देते हैं और हम देखते भी हैं कि कैसा चल रहा है किसी एक पेशेंट का। तो एक बहुत फेयर आइडिया है कि कैंसर क्या और कैसे बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि कैंसर का सेल आपका अपना बॉडी का सेल है। आपके अपने बॉडी का सेल पहले बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता था। जब उसको बोला जाता था कि तुम अपना ऐसे कर लो तो वो ऐसे कर लेता था। जैसे ही जो कमांड्स आती हैं बॉडी में वो सब कुछ मानता था। अचानक उसने मानना बंद कर दिया है। और अगर ये बाहर का सेल होता तो आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स को वो जानता नहीं और शायद मर जाता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। नहीं, ये आपके बॉडी के अंदर का सेल है। इसको आपके सर्विलांस सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, क्या क्या मार सकता है इसे, इसको सब कुछ शुरू से पता है। इसलिए इसको मारना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपके पास, बॉडी के पास मारने के लिए इम्यून सिस्टम ही है। यानी कि घर का भेदी लंका ढाए, वो काम। बिल्कुल यही बात होती है और पूरी लंका ढह जाती है। अगर बाहर का कोई होता तो शायद इम्यून सिस्टम उसको इमीडिएटली मार देता, लेकिन ये अंदर का सेल है। प्रॉब्लम ये है, अब ये एक टेररिस्ट सेल है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि अब बॉडी के, सोसाइटी के कमांड्स नहीं मानता है बागी। तो अगर ये देखा जाए कि टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म हो गया है क्या? टेररिज्म के सोच पे वार करना पड़ेगा। आप देखिए हमारी जितनी भी हीलिंग पद्धतियां हैं मॉडर्न मेडिसिन में, किल फेनोमेनन पे हैं। सर्जरी काट के निकाल दिया, कीमोथेरेपी पॉइजन कर दिया, रेडियोथेरेपी जला दिया। किल फेनोमेनन पे हम काम कर रहे हैं। टेररिस्ट तो किल हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पे ये डिबेट हो सकती है, ये दवा अच्छी है, वो दवा अच्छी है। बेसिक फिलॉसफी पे जाएं, उसको मेन स्ट्रीम में लें। बेसिक फिलॉसफी ये है कि किल फेनोमेनन से टेररिज्म खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उसकी फिलॉसफी पे जाना पड़ेगा, जो हम आज बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी को करना है तो कैसे हम उस पे ये करें। मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न ये
इसमें सबसे बड़ी चैलेंज आज के दिन में हार्ट डिजीज नहीं है। अभी 2020 तक नेक टू नेक आ गया था कैंसर और हार्ट डिजीज। जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। जनरल पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज़ कितना है तो हार्ट डिजीज़ पे फोकस किया जाए, या कैंसर कितना है तो ऑलमोस्ट 2020 में नेक टू नेक आ गया था। अब कैंसर हैज़ ओवरटेकन हार्ट डिजीज़, उससे ऊपर चला गया है। तो जनरल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट जैसे 20 to 22% हार्ट डिजीज़ हैं। कैंसर अभी थोड़े टाइम पहले तक 20 to 22% था, अब 23.5% हो गया, मतलब ऊपर चला गया है हार्ट डिजीज से। तो ये तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये अपने इधर रीजन में है या फिर वी आर सेइंग अबाउट इंडिया? पूरे विश्व में। पंजाब में भी है और पंजाब में कुछ ज़्यादा है, उस पर भी हम फोकस करेंगे क्यों है ऐसा, जब हम उसकी बात करेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो उसके फैक्टर्स कई हैं। मॉडर्न मेडिसिन आप याद करिए, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II 1970s में जब कैंसर ये बढ़ने लगा, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन निक कार्टर थे अमेरिका के ये प्रेसिडेंट। तो कार्टर साहब ने वॉर अगेंस्ट कैंसर शुरू किया था, ये मुहिम वॉर अगेंस्ट कैंसर की। अब तो लोगों का वो नहीं है, अब तो वॉर्स नहीं हो रहे हैं, तो हम कम से कम अपनी बीमारियों पे वॉर करें और लोग ना मरें। तो ये बहुत विश्व में स्वागत हुआ इसका, सबने कोशिश की। उस वॉर में हम कुछ दूर तक पहुँचे भी, कुछ ऐसी वंडर ड्रग्स बनी, कुछ ऐसा ये लगा कि हम शायद कर पा रहे हैं, लेकिन हर बार फेलियर का सामना करना पड़ा कि ये कुछ हद तक तो काम करती हैं, उसके बाद ये नकारा हो जाती हैं, बॉडी खुद ही रिजेक्ट कर देगी। तो इसके लिए बॉडी के मैकेनिज्म को समझना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डिटरमिन कि वो मारना कैसे है। इसलिए वो समझना ज़रूरी है। समझते समझते हम इस स्थिति में आए हैं कि शायद जीन्स इन्वॉल्व हैं, जेनेटिक डिजीज़ है कैंसर। जीन्स कहीं ना कहीं म्यूटेट कर जाते हैं। इंसल्ट्स कई होते हैं, सेल्स को इंसल्ट दूषित एयर से भी होता है, दूषित खाने से भी होता है, कई चीज़ों से होता है। तो कोई एक ऐसी चीज़ से सेल्स आर गेटिंग इंसल्टेड और उनका जीन्स इंसल्ट होके म्यूटेट कर जा रहा है। म्यूटेट क्यों करता है जीन? क्योंकि सेल को सरवाइव कराना है। इस इंसल्ट के साथ भी जीना कैसे है? भाषा बदल जाता है, अपना तरीका बदल जाता है। वो क्या होता है कि आप जैसे कुत्ते को छेड़ेंगे तो वो ट्राई करेगा या तो भाग जाने का या फिर भौंकेगा, मतलब आपको दूर भगाएगा, कुछ भी, वो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका। उसी तरह सेल्स के ऊपर अगर कोई इंसल्ट आता है तो ये सेल के तरीके हैं आपको कैसे जवाब देगा। वो कुछ केमिकल जैसा बनाएगा या कुछ ऐसा अपना जेनेटिक कोड में मॉडिफाई कर देगा ताकि इस इंसल्ट से बचा जाए। तो इसलिए वो इंसल्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू कि जेनेटिक म्यूटेशन के चलते सेल्स ये अडेप्ट तो कर गए, लेकिन एपोप्टोसिस एक चीज़ होती है जो बॉडी में होती है कि सेल्स कितने बढ़ने चाहिए, इससे ज़्यादा ना बढ़ें। जैसे मान लीजिए ग्रोथ हो गया है तो हम लॉन को मो करते हैं कि ग्रोथ ये ठीक रहे, तो वो एक सिस्टम बॉडी में है एपोप्टोसिस का, जो उन सेल्स को कितना बढ़ना चाहिए कितना नहीं बढ़ना चाहिए, इतना सेल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है। जब इम्यून कंट्रोल से बाहर चला जाता है, इसलिए मैंने टेररिस्ट सेल बोला था, तो ये अपने आप ग्रो करने लगते हैं। उनको काटने का कोई जरिया नहीं बचता। और प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ये जानते हैं, उसको चकमा दे देते हैं और जो जीन्स जिसने म्यूटेट किया वो उसको ग्रो कराते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इस ग्रोथ में
ब्लड सप्लाई आ गया। अगर ब्लड सप्लाई आ गया दैट मीन्स आपने रिवर की ट्रिब्यूटरीज इस तरफ खोल दी, यहां पर खेती और लहलहा जाएगी। ब्लड सप्लाई आने का मतलब है और ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ पे आ गया तो उसको न्यूट्राइएंट्स मिलने लगे और वो ग्रो करने लगा। एट व्हाट एक्सपेंस? ये हाइपर मेटाबॉलिक सेल्स हैं। ये वर्ड्स इसलिए ज़रूरी हैं कि अंत में जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे ये वर्ड्स काम आएंगे। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि ये सेल्स ज़्यादा मेटाबोलाइज करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा अपने आप को चुस्त रखने के चक्कर में रहते हैं। सो मच सो दैट एट द एक्सपेंस ऑफ द होल बॉडी। तो आपने कैंसर पेशेंट्स को देखा होगा कि ट्यूमर बढ़ जाता है और बॉडी घट जाती है। यस, क्योंकि ये बॉडी के एक्सपेंस पे अपना मेटाबॉलिज्म चलाते हैं और हाइपर मेटाबॉलिक सेल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो इनका ब्लड सप्लाई जो आया वो और ज़्यादा ग्रो करा रहा है और ब्लड सप्लाई बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो भी है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बॉडी उसको सेल्फ मानती है जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये सेल्फ नहीं है। कोई बाहर की चीज़ें जो सेल्फ बॉडी समझती है कि सेल्फ नहीं है, उसको नॉन सेल्फ समझ के निकाल देती है या मार देती है। ये सेल्फ है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बहुत टाइम लगता है सोचने में कि इसको मारा कैसे जाए। और अगर मारेंगे भी तो खुद को ही मारेंगे, वो ये सोच के थोड़ा सा हमला करने में। वो आसपास के सेल्स ये इंडिकेशन दे देते हैं कि ये आपकी बातें नहीं सुन रहा है। तो हाँ, तो लेकिन इस टेररिस्ट सेल को सारा कुछ मालूम है कि अभी पुलिस आएगी, अभी ये आएंगे, यहाँ से वो AK-47 चलाएंगे, तो मुझे कैसे बचना है, उनको सारा कुछ मालूम है। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको मारना। तो ये हो गई बात कि कैंसर कैसे बना, जेनेटिक म्यूटेशन से और ज़्यादा ग्रोथ हुआ और बॉडी के जो मैकेनिज़म्स हैं ग्रोथ को चेक करने के लिए उनको क्रॉस कर गया, उनकी बातें सुनता नहीं, तो कैंसर बढ़ गया। अब यही मैकेनिज़्म है कैंसर होने का कहीं भी, और ये कहीं भी हो सकता है। इसलिए जितने भी कैंसर, जितने भी आप डिफरेंट नाम सुनेंगे, कॉमन मिनिमम पाथवे सबका यही है, यही कॉमन मिनिमम पाथवे है और यहीं से हम डायग्नोज करते हैं कि हाँ ये कैंसर है। तो चाहे वो प्रोस्टेट का कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट का कैंसर हो, चाहे वो बोन्स का कैंसर हो, चाहे वो कहीं का भी हो, उसका कॉमन मिनिमम पाथवे यही है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब एज फार एज जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ट्रीटमेंट पे भी आएंगी। आपने बड़े विस्तार से इस चीज़ को बता दिया। मैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਘੁੰਮ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀਡ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਇਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बॉडी के अंदर साढ़े दोस्त बैठे हैं। यस, आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ डेरा वसीम हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ एम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर
खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर ज़ुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਟ ਫਲੋਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਗਟ 'ਚ ਨੇ, ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ 'ਚ। ਉਹ ਰੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਮਾਰਤਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਇਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਪੂਰੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਗੀ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਫਿਰ ਨਜਿੱਠੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? यही अंडरस्टैंडिंग की बात है। और हमने जो बचपन से कहानियाँ पढ़ी हैं, द विनिंग ऑफ गुड ओवर ईविल, हमारे जितने हमारी कहानियाँ हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कोई भी कहानियाँ हो, गुड ऑलवेज विंस, ईविल चलता नहीं है। ईवल मार रहा है लोगों को, इधर ईवल मार रहा है कि कैंसर का ईवल मार रहा है। कैंसर के स्टेज में भी वो एक स्टेज आता है, ईविल कुछ समय तक तो ईविल कैसे प्रूव करेगा, वो जब इतना दहशत, तो वो कर रहा है। अब समय आ गया है कि इसके ऊपर डिकोड करके काबू पाया जाए, हम उसकी बात करेंगे। अब तक ये टेररिस्ट सेल्स को हम किल फेनोमेनन में जाते रहें, इसमें मोड ऑफ एक्शंस शायद इस वीडियो के स्कोप के बाहर होगा, लेकिन यही 3 तरीके हैं हमारे पास है जो इनको हम काबू में थोड़ा बहुत ला सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है वर्ल्ड वाइड कि ये कारगर नहीं सिद्ध हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? इसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर बहुत ज़रूरी है। 3 तरीके, कीमोथेरेपी दो, थोड़े एक बार रिवाइव। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तीनों तरीके जो कारगर नहीं साबित। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। तो ये 3 तरीके हमारे पास कुछ समय पहले तक थे। अब एक चौथा आयाम इसमें जुड़ गया है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में the idea of immunotherapy is to boost the immune system. अब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत साइंटिफिक सोच है और बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि यही सोच कारगर होगी। बाकी सभी सोचें थोड़े टाइम तक कारगर हो सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेंगी। और म्यूटेशन के बाद वो चीज़ फेल हो जाती है, जो बीमारी म्यूटेशन कर देती है। होता क्या है, जैसे ही सेल म्यूटेट करता है, इम्यून सिस्टम उसको नॉन सेल्फ मानने लगता है कि ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है, और इम्यून सिस्टम अपना काम करने लगता है। तो इम्यून सिस्टम बहुत ठीक से काम कर पाए तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट हम एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं। देंगे एक्सटर्नली कैसे, इंटरनली कैसे? इम्यून सिस्टम, आप देखिए हम बहुत मिथ्स में रहते हैं। इम्यून सिस्टम की बहुत बातें होती हैं, जब से कोरोना आया है इम्यून सिस्टम की बातें बहुत होती हैं। तो आप जिससे भी पूछे वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, कोई भी आपको पूरा एक प्रेस्क्रिप्शन दे देगा कि ये खा लीजिए, गिलोय खा लीजिए, हल्दी, अदरक, मतलब वो आपको कोई आयुर्वेद वाले भी बता देंगे। मॉडर्न मेडिसिन में भी आपको कई चीज़ें बता दी जाएंगी, ये खाने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ले मैन भी बता देगा कि आप ये करो, ये मेरी दादी करती थी, ये वो। तो हर तरह की चीज़ें हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सारी नॉलेज होते हुए भी क्या हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टेड है? कैंसर पे एक सवाल ये भी है ना कि इंसान ठीक है, नज़र आ रहा है ठीक है, लेकिन कैसे पता चले कि उसके अंदर इम्यून सिस्टम जो वो कम है? ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किसको बूस्ट करें, एक इंसान किसको बूस्ट करें?
सोचने ऐसी बात यह है कि अभी हम कैंसर की बात कर रहे हैं, एक छोटे से वायरस, एट द एंड ऑफ द डे कोरोना इज़ अ वायरस, एक छोटे से कोरोना वायरस को हम मर रहे हैं और हम उस पे काबू नहीं पा रहे हैं, तो कैंसर तो बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब साइंस पे आ जाते हैं। इम्यून सिस्टम, एक समझने वाली बात यह है कि अगर च्यवनप्राश खा के इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता और हल्दी और गिलोय खा के, तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं होता। और अगर एक्सरसाइज करके हेल्थ ठीक रहता तो सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं होता। ये दोनों बातें आपके सामने हैं। दैट मीन्स मे बी वी हैव लॉस्ट द पैराडाइम। हमें अपनी सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट ये है, इम्यून सिस्टम कुछ नहीं खाएंगे तो ज़्यादा बूस्ट होता है। दैट इज़ कॉल्ड फास्टिंग। फास्टिंग से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। खाएं, इससे इम्यून बूस्ट हो जाएगा, इससे इम्यून, सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है फास्टिंग से। तो यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने लंबे समय तक जीते रहते थे और बीमारियां उनको छूती भी नहीं। मैं आपको जो बोलूँगा वो लेटेस्ट साइंटिफिक बातें इसलिए बोलूँगा कि आई एम अब्रेस्ट विथ, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ और मैं जानता हूँ दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। जो भी मैं आपको बोलूँगा ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। 2016 का नोबेल प्राइज़ किस बात के लिए मिला था? वो इस बात के लिए मिला था कि ऑटोफेजी किल्स कैंसर। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी इज ईटिंग वन सेल्फ। जब आप बाहर से कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी खुद को खाने लगेगी, और खुद को जब खाती है तो सबसे पहले जो हाइपर मेटाबॉलिक सेल्स हैं वो उछल के सामने आते हैं, बॉडी सबसे पहले उनको खाती है, इसलिए कैंसर को खाती है। ऑटोफेजी कैन किल कैंसर। तो आप मैं देखिए, सीधे उस पे आऊं कि क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि कैंसर का इलाज जो फास्टिंग से हो सकता है? यस एब्सोल्युटली। फास्टिंग से मैं ये मानता हूँ, और मेरे साथ साथ बहुत लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं और जो चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फास्टिंग से ठीक नहीं हो सकती है। दुनिया के इंसान के पास ऐसी कोई बीमारी अभी तक आई नहीं है जो फास्टिंग से ठीक नहीं हो सकती है। तो फास्टिंग का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। आप देखें, एक मैं आई एम प्रिविलेज टू नो अ फ्यू पीपल इन
ट्रू नॉर्थ हेल्थ सेंटर है यूएस में, जहाँ पर ये कंट्रोल्ड फास्टिंग्स कराते हैं। और मैं जानता हूँ उनको फास्टिंग करने से प्रॉब्लम क्या होता है। आम जनता, अब जैसे आपने नॉलेज ये दे दिया, फास्टिंग में जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया में जाके शॉक में जा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है कि कितना फास्टिंग, क्या, कैसे, और हम कैसे उसको मॉनिटर करें। तो मॉनिटर्ड फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू क्योर नॉट ओनली कैंसर, एनी डिजीज फॉर दैट मैटर। तो आप ये बोल सकते हैं कि फास्टिंग इज आल्सो थेरेपी, फास्टिंग थेरेपी। यस, एब्सोल्युटली, इससे बड़ी कोई थेरेपी नहीं है। और आप अगर देखें अगर आप इतिहास में जाएं, दुनिया का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो फास्टिंग पे जोर नहीं देता है और उसका महत्व समझता नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, सनातन धर्म हो